So for closing liabilities, you have to pass the entry various liabilities like creditors, bill payable, account debit to realization account. By liabilities, I mean liabilities to third party. It does not include accumulated profits, reserves, loan by partners or partners capital account. This you are not going to carry in the realization account. Next, workman compensation reserve entries are, as I have already explained you, that how much reserve is utilized, what is remaining, that will be distributed among the partners. But the difference is here you have to use the name realization instead of revaluation. Entries are all same as I have explained earlier in earlier 2 chapters, but name of the account you will change. Now third, for realization of assets, means when you are selling off the assets. When assets are sold, you will write entry will be cash or bank account debit to realization account. And if any asset is taken by a partner, then that concerned partner capital account debit to realization account. When an asset is given to creditors toward the payment of his due, like machinery is given to Mr. X for in settlement of his account, in that case no entry will be passed. All this point you have to keep in your mind, then only your realization account will be correct. For settlement of liabilities, means for payment of liabilities, on payment you will write realization account debit to cash or bank when you are paying off a liability. If a partner agrees to settle that liability, then realization account debit to concerned partner's capital account. Now this point which I am going to tell you, you have to keep it in mind, it's very important. If question is silent regarding settlement of liability, like in question they will mention that these assets are sold at this rate, you will pass entry accordingly. But if question don't tell you about the liabilities, it is implied that liabilities are paid, you have to make entry for the payment of liability. अगर क्वेश्चन में वो ना कहे ना कि लाइबिलिटीज़ इतने में सेटल की है, क्रेडिटर्स को इतने में पे किया है, पर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स मेंशन हो, तो आपने अपने आप उनको पेमेंट करनी है. ये इम्प्लाइड है कि हमने लाइबिलिटीज सारी पे ऑफ की हैं. ठीक है. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेटलमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी, इट इज़ अज्यूम द अमाउंट इक्वल टू बुक वैल्यू इज पेड. जितने की लाइबिलिटी है, जितना बैलेंस शीट में लाइबिलिटी मेंशन है कि उतने की अमाउंट हमने पे की है, ये हम अज्यूम करते हैं. उसके बाद रियलाइजेशन में बेटा एंट्री आती है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन की. ये भी कुछ रिवैल्यूएशन से मिलते हैं. देखो, अगर आपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो कि आपको इतने खर्चा देंगे, आप रियलाइज़ करवा दो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, अगर फर्म ही पे कर रही है, फर्म ने ही झेलना है खर्चा, बॉर्न करना है, तो योर एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. नेक्स्ट, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म बॉर्न कर रही है लेकिन पार्टनर पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म बट पार्टली पेड बाय फर्म एंड बैलेंस पेड बाय पार्टनर, तो जितना फर्म पे करेगी उतना कैश लिख देना, और जो पार्टनर पे करेगा उतना अपने कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देना है. ठीक है. तो वही आगे चलेगा. When realization expenses are borne and paid by a partner, ये ध्यान रखो, जब ये लाइन आ जाए कि पार्टनर ने ही बॉर्न किया है, उसने ही सारा फेस किया है और उसने ही पे किया है, बियर भी उसने किया है, पे भी उसने किया है, तो अपने कोई एंट्री नहीं डालनी. जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर बियर करेगा लेकिन फर्म ने पे कर दी है, तो एंट्री आएगी कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. तो ये सारी थी जर्नल एंट्री. अब मैं आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा समझाऊंगी. देखो, ऐसे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट. डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट. तो पहले डेबिट साइड आपने जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट्स मेंशन है उनको राइट ऑफ करना है, उनको बैलेंस को उनको कैरी डाउन कर लेना है. टू लैंड मशीनरी अगर मेंशन है बैलेंस शीट में, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट. इधर लाइबिलिटी साइड जितनी भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ मेंशन है, जैसे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय creditors, by bill payable, any outstanding expenses, any bank loan, any bank overdraft,
कोई कैश क्रेडिट है, तो सारे आपने बैलेंस शीट से वैसे ही लिख लेने। फिर नीचे एडजस्टमेंट में वो बताएंगे कि कैसे कैसे पेमेंट हुई है, क्या हमने कैसे एसेट्स बेचे हैं, कैसे लाइबिलिटीज़ को पे किया है, तो आपने वैसे ही एंट्री डालनी है। जैसे आपने एसेट्स बेच दिए तो बाय बैंक और कैश अकाउंट, लैंड बेचा है जितने में, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, बैड डेट। अगर कोई एसेट कोई पार्टनर ले रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी उसने एसेट लिया है। इधर आप लाइबिलिटीज़ पे करोगे टू कैश अकाउंट, लाइबिलिटीज़ पेड, क्रेडिटर्स को पे किया, बिल पेबल किया, सारे लाइबिलिटीज़ आपने पे कर दी। फिर अगर आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया फॉर्म ने टू बैंक अकाउंट, अगर पार्टनर पे कर रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड बैलेंस आया तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, जो आपने ट्रांसफ़र करना है टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दिस वाज ऑल अबाउट your realization account. Now I'm going to solve 1-2 sum for you, so to make it more clear to you. First, थर्ड सम है जहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस राहुल ने पे किए हैं, तो राहुल इज अ पार्टनर, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड में रेम्यूनरेशन पे की है रमेश को फॉर रियलाइजेशन, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। थर्ड में remuneration allowed to Anuj, so realization account debit to Anuj account. Fourth में being expenses paid by firm on behalf of Anuj, तो Anuj capital account debit to बैंक अकाउंट। ठीक है, अब एक मैं रियलाइजेशन का सम है, सम नंबर 15 जो आपके लिए सॉल्व करूँगी। इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे और आपका होमवर्क है कि आपने सम नंबर 15 तक कंप्लीट कर लेना है। तो देखो, फर्स्ट जर्नल एंट्रीज हैं। फर्स्ट में बेटा स्टॉक था 2 लाख का, जो पी ने भी ले लिया, 50% पी ने ले लिया, 10% वैल्यू, 10% लेस पे, 50% मतलब 1 लाख, 10% लेस मतलब 10,000 माइनस करके 90,000 का ले लिया पी ने, और बाकी बैंक बेच दिया हमने 25,000 एक्स्ट्रा करके, तो 1,25,000 का बेच दिया, 2,15,000 हो गया स्टॉक रियलाइज्ड। ठीक है, आगे बैड डेट्स, हमें अपने डेट्स मिल गए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसे हमारे पास आ गए हैं। फिर हमने लैंड बेचा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आगे हमने मशीनरी क्रेडिटर को दे दिया, आपको मैंने बताया ना, अगर एसेट दे रहे हैं इन सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, सो नो एंट्री। आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट बेची है। उसके बाद वहाँ पे कुछ बताया नहीं है रियलाइजेशन के बारे में, सिर्फ मेंशन है प्रीपेड इंश्योरेंस एंड गुडविल, तो हमने इसकी कोई एंट्री नहीं डाली जब हमने ये बेचे नहीं है, रियलाइज़ नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं आया। आगे अनरिकॉर्डेड फर्नीचर बेचा है 10,000 का। फिर बैड डेट रिकवर हो गए, हमारे बैड डेट थे वो हमें मिल गए हैं, पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्दर वाइफ का लोन पे किया है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, पी की वाइफ का लोन हमने पे किया है। लास्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स हमने पे किए हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 82,000। वैसे क्रेडिटर्स 72,000 बन रहे थे, 80,000 का 90%, 10,000 पिछला क्रेडिटर्स थे, वो हमने ऐड करके 82,000 क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो ये था आपका डिसोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। आपने इसको अच्छी तरह डिटेल में करना है, आपने सारे सम्स रियलाइजेशन के सॉल्व करने हैं। अगर आप सॉल्व करोगे देन ओनली यू विल फेस डिफिकल्टी एंड देन ओनली यू विल ओवरकम इट। ओके, थैंक यू।